Hi friends, welcome back to the numerical second session of numericals of chapter number 2. We had completed up to 2.7 in exercise. Now we continue with 2.8. In exercise 2.8, in the question you are given that there is a parallel plate capacitor having area of the plates as 6 into 10 raised to minus 3 meter square. Distance in the plate is given as 3 millimeter. Between the plates, nothing is there. That means air is filled. Air is present. It is connected to a battery of 100 volt. We have to find out the capacitance and the charge stored. Capacitance C will be equal to A epsilon 0 upon D. For parallel plate capacitor, we know that. Now here epsilon 0 is a commutative vacuum. Let me remind you the value 8.85 into 10 raised to minus 12 Newton Coulomb square upon Newton meter square. Put up the values, get the answer, you will get it in farad. Take it to the nearest prefix, and here in this case it will be picofarad. Then you have to find out the charge Q. Charge Q will be C into V. Potential difference V is applied. So this much Coulomb and this much, sorry, you will be getting it Coulomb. Now you get 2.8. Continuing the same numerical in 2.9. You are said that same capacitor is there. Now the gap between the plates, जो 3 millimeter का gap है, that is filled with a dielectric material. That is filled with a dielectric material mica, which has dielectric constant 6. तो K equal to 6 है. अब नए सिचुएशन में पूछे कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा. नए सिचुएशन पूछे इसका कैपेसिटेंस क्या होगा. अच्छा, कब? When battery is connected. When battery connected. जब बैटरी कनेक्टेड है, which was in the previous case, how much is the new capacitance and the potential difference and the charge. नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? K times C. तो पहले तो वही, तो ये C का वैल्यू यहाँ से यूज करके आप डायरेक्टली you will get the infrared and in picofarad. ये हो गया नया कैपेसिटेंस, and the charge stored in new case will be C dash into V. Okay, ये हो गया how much will be the capacitance and how much will be the charge stored. फिर चलते हैं आगे. इसमें सेकंड पार्ट में बोला है कि व्हेन बैटरी डिस्कनेक्टेड, फुल चार्जिंग करने के बाद बैटरी डिस्कनेक्ट कर दो. व्हेन बैटरी डिस्कनेक्टेड, तो सिचुएशन में क्या होगा? यहाँ पे पोटेंशियल पूछा हुआ है. देखो बैटरी डिस्कनेक्ट करें तो कैपेसिटेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता. द चार्ज आल्सो रिमेन्स द सेम, बट द न्यू पोटेंशियल कम्स आउट टू बी V इक्वल टू Q dash by C dash. Okay, so that's a sum number 2.9. Next we go for 2.10. So you have read the question number 2.10. तो 2.10 में दिया हुआ है आपको कैपेसिटेंस 12 पिकोफैरड, यानी कि 12 इंटू पिको मीन्स 10 raised to minus 12 फैरड, एंड साथ में दिया इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 50 वोल्ट एंड बोला एनर्जी स्टोर्ड ढूंढिए. एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन एज हाफ CV स्क्वायर. यहाँ C और V दिए, हाफ CV स्क्वायर यूज कर लिया. इफ यू आर गिवन C एंड Q, अगर Q दिया होता V के बदले Q दिया होता तो दैट वुड बी Q स्क्वायर बाय 2C. You can use either of the formula. This much joule energy will be stored in the capacitor. Friends, next we go on for exercise का 2.11. इसी वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, 2 बार पढ़ लेना. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्लीज रीड इट ट्वाइस and come back. In 2.11 you are given that there is a capacitor of 600 picofarad connected to a battery of 200 volt, and you are said that using this battery it is charged to the full, it's fully charged. Then the battery is removed and another capacitor, identical capacitor is connected. एक कैपेसिटर था, उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, कंप्लीटली चार्ज हो गया. लेट्स से C1 बोल देते हैं इसको. कंप्लीटली चार्ज हो गया, फिर बैटरी हटा दी एंड इसको कनेक्ट कर दिया अनदर आइडेंटिकल कैपेसिटर, अनचार्ज कैपेसिटर. तो सिस्टम में कितना एनर्जी लॉस होगा वो फाइंड करना है हमको. वी हैव टू फाइंड द एनर्जी लॉस अकरिंग इन द सिस्टम. तो उसके लिए क्या करेंगे? तो स्टार्ट कर सबसे पहले द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 200 वोल्ट. तो उस केस में एनर्जी स्टोर कितना होगा? तो लेट्स से UI इज इक्वल टू हाफ C1 V स्क्वायर.
इसको फैरेड में ले लीजिए एंड कैलकुलेट कीजिए, सम एनर्जी विल कम, लेट्स से some energy will come here, then we find the total charge stored C1 into V, फुल चार्जिंग में कितना चार्ज यहाँ पे स्टोर हुआ, कितना कूलर। ओके, अब ये तो हो गया कैप्सूल को कनेक्ट किया बैटरी के साथ, फुल्ली चार्ज हो गया एंड एनर्जी इतनी स्टोर्ड है। ओके, नाउ व्हाट वी डू इज वी डिस्कनेक्ट द बैटरी एंड कनेक्ट अनदर आइडेंटिकल कैपेसिटर, लेट्स से C2। नेक्स्ट केस में क्या बोले, another identical capacitor C2 is connected, which is same 600 picofarad, but no charge on it. Now what happened on connecting this capacitor to the previous capacitor, fully charged capacitor, on connecting uncharged capacitor with the fully charged capacitor, charge will get distributed among the two, and ये charge distribution कब तक चलेगा, जब तक दोनों का potential difference same हो जाए तब तक। The charge gets distributed till potential difference of both of them becomes equal। तो यहाँ हम नोट करते हैं, capacitor C2 will be charged by C1 till potential difference of both becomes same। इसको आप बोल सकते हैं पैरेलल कनेक्शन इसलिए ऐसा हुआ है, पर एक्चुअली पैरेलल कनेक्शन नहीं बोल सकते, पर यूं बोलेंगे कि चार्जिंग विल अकर टिल पोटेंशियल ऑफ बोथ ऑफ देम बिकम्स सेम, यानी कि V1 इक्वल टू V2। नाउ व्हाट इज V? तो we know that C equal to Q by V, तो V will be equal to Q by C, sorry C by Q, तो C1 by Q1 equal to C2 by Q2 हो गया, sorry C is equal to Q by V, so V will be equal to Q by C, so it will be Q1 by C1 is equal to Q2 by C2। Now here C1 and C2 is same, as C1 equal to C2, therefore Q1 will be equal to Q2, यानी दोनों में इक्वल चार्जिंग होगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है, पोटेंशियल भी सेम है, कैपेसिटेंस सेम है, पोटेंशियल भी सेम है, तो चार्ज भी सेम रहेगा दोनों में इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। अब द टोटल चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टू इक्वली, देयरफॉर Q1 विल बी इक्वल टू Q2 इक्वल टू इसका आधा हो जाएगा। तो व्हाट यू गेट इज चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटर्स आफ्टर कनेक्टिंग, तो दोनों में चार्ज कितना आ गया वो मिल गया। नाउ वी फाइंड एनर्जी इन बोथ ऑफ देम, तो U1 will be equal to half C1, sorry Q है हमारे पास और C है, तो will be Q1 square by 2 C1। ये पहले कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हुआ है, दिस मच जूल। सिमिलरली U2 will be equal to Q2 square upon 2 C2, इतना जूल। तो देयरफॉर टोटल एनर्जी फाइनली सिस्टम में कितना टोटल एनर्जी होगा, तो will be U1 plus U2 दिस मच जूल, बराबर है, ये फाइनल आ गया। अब let me quote the values which will be coming here। so कैलकुलेशन में कुछ वैल्यूज जो मिले बता रहा हूँ, खास मुझे जो एम्फसाइज करना है वो UI is 12 into 10 raised to minus 6 जूल, इतना एनर्जी स्टोर था इनिशियली। चार्ज वाज अराउंड 12 into 10 raised to minus 8 कूलम, इतना चार्ज टोटल था। वो चार्ज दो पार्ट में डिवाइड हुआ एंड इट कम्स आउट टू बी 6 into 10 raised to minus 8 कूलम ईच। अब ये वैल्यू डाल दिया Q1 और C1, Q1 6 into 10 raised to minus 8, C1 is 6 into 10 raised to minus 10 फैरेड, ये वैल्यू रख देते हैं। तो here it comes out to be 3 into 10 raised to minus 6 जूल। Q2 is same as Q1, C1 is same as C2, therefore दोनों का एनर्जी स्टोर सेम आएगा, 3 into 10 raised to minus 6 एंड टोटल हो जाएगा 6 into 10 raised to minus 6 जूल। अब जो मुझे खास आपको समझाना है वो, here what happened, initially total energy was 12 into 10 raised to minus 6, now finally total energy is 6 into 10 raised to minus 6 joule, यानी कि एनर्जी हैज रिड्यूस्ड। कितना रिड्यूस हुआ, तो लेट्स से डेल्टा यू इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल, एंड दैट कम्स आउट टू बी 12 into 10 raised to minus 6 minus 6 into 10 raised to minus 6, तो ये हो गया 6 into 10 raised to minus 6 जूल। इनिशियल इज ग्रेटर देन फाइनल, मतलब क्या हुआ, एनर्जी इज लॉस्ट हियर एंड दैट एनर्जी लॉस्ट इज 6 into 10 raised to minus 6 एनर्जी लॉस। यानी हो क्या है, इनिशियली इतना चार्ज था जब इसको इतना एनर्जी था जब इसको फुल्ली चार्ज किया, आफ्टर कनेक्टिंग अनदर अनचार्ज कैपेसिटर वी फाइंड दैट टोटल एनर्जी इतना हो गया, मतलब इतना एनर्जी लॉस हुआ
ये एनर्जी कहाँ गया? तो दिस एनर्जी इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी while charging C2, while charging C2 इतना एनर्जी लॉस हो गया। कितना होगा देखो, टोटल एनर्जी लॉस आधा हुआ है, ऑलमोस्ट हाफ। बोथ आर आइडेंटिकल कैपेसिटर, हाफ एनर्जी इज लॉस्ट, यानी इनिशियली जितना था उससे आधा हो गया फाइनली। एंड इंडिविजुअली दोनों में देखो तो कितना होगा, इसका भी आधा आधा, मतलब 1/4। तो अगर टोटल एनर्जी इनिशियली यू बोलते हैं, अगर टोटल एनर्जी इनिशियली यू बोलेंगे तो फाइनली टोटल एनर्जी भी U/2 एंड इंडिविजुअल भी U/4। ये एक पॉपुलर एमसीक्यू भी है। क्या बताता है कि व्हेन चार्ज कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, तो जो एनर्जी टोटल है वो ऑन कनेक्टिंग इट टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर बिकम्स 1/4 इंडिविजुअल, यानी इसका जो टोटल एनर्जी वो 1/4 हो गया, दूसरे का भी 1/4 हो गया, एंड टोटल मिला के हाफ हुआ जो पहले से आधा हुआ है। यानी कि while charging an uncharged capacitor, while charging an uncharged capacitor, the total energy of the capacitor, initial original capacitor, reduces to half. Total energy reduces to half. यानी आधी एनर्जी लॉस्ट हो गई हीट एनर्जी के फॉर्म में। इज दिस क्लियर? तो दैट बिकम्स हाफ। अब कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, व्हाट डज इट मीन कि व्हेन यू हैव फुल्ली चार्ज कैपेसिटर, यूजिंग दैट व्हेन यू आर चार्जिंग एन अनचार्ज कैपेसिटर, द एनर्जी इज लॉस्ट। कितनी? ऑलमोस्ट आधी एनर्जी लॉस हो रही है, इसका आधा एनर्जी इज लॉस्ट। अप्लाई करते डेली लाइफ में। यू हैव योर मोबाइल, योर मोबाइल इज राइट नाउ हैविंग नो चार्ज। व्हाट यू डू इज you directly connect it to power supply and you get the phone charged. Fine, चलो ये तो बराबर है कि मोबाइल इज गेटिंग चार्ज, मोबाइल में जो बैटरी वो चार्ज हो रही है। हम अभी उस बैटरी को कैपेसिटर के फॉर्म में लेते हैं, तो मोबाइल का कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, जो बैटरी मोबाइल को सप्लाई कर रहा है एनर्जी। अच्छा, अब अभी फैशन चला है पावर बैंक रखने का, बट पीपल डू इज पावर बैंक उसके ऊपर मोबाइल एंड शान से घूमते हैं कि अपने तो पावर बैंक से चार्जिंग करते हैं। तो उसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वो पावर बैंक you have to charge. Now what happens is using the supply you charge a power bank, एक कैपेसिटर हो गया, फिर उस पावर बैंक को यूज करके आप अपना मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। देखो ध्यान से समझो, इसको चार्ज के यूजिंग द सप्लाई, इसको चार्ज के यूजिंग द सप्लाई, बराबर पावर बैंक को चार्ज कर दिया। अब पावर बैंक से आप अपना मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, आधी एनर्जी लॉस हो रही है। So it is advisable to charge your mobile phone directly from the supply rather than from the power bank, क्योंकि आप वहां से पावर बैंक को चार्ज करेंगे, फिर पावर बैंक से फोन को चार्ज करने जाएंगे, आधे से ज्यादा एनर्जी तो लॉस हो जाएगी। तो यू आर एट अ लॉस ऑलवेज, यू आर लूजिंग हाफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे बी केयरफुल, अवॉइड चार्जिंग फ्रॉम पावर बैंक इफ यू आर नियर टू सम डायरेक्ट सप्लाई। अवॉइड चार्जिंग फ्रॉम पावर बैंक। पावर बैंक इज अ डिवाइस which is used in emergency case only, not in regular case, not for show. ओके, सो दैट्स जस्ट न्यूमेरिकल। अब इसी न्यूमेरिकल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये तो एक्सरसाइज के सम्स खत्म हो गए। अब एडिशनल एक्सरसाइज का एक सम हम ले रहे हैं 2.27। एडिशनल का एक सम ले रहे हैं 2.27। तुम बोलोगे सर एडिशनल एक्सरसाइज में कहाँ घुस गए? नहीं, ये सम इसके जैसे सेम टू सेम है, फर्क उसमें उतना ही है। हियर यू आर गिवन बोथ द कैपेसिटर सेम, जो ओरिजिनल कैपेसिटर था एंड नया कैपेसिटर दोनों आइडेंटिकल है, सिनेरियो कंप्लीटली सेम है, खाली 2.27 में दोनों की वैल्यू अलग अलग, दीज टू आर डिफरेंट। तो उस केस में क्या होगा वो यहाँ पे स्टडी करना है। नाउ वी आर डूइंग द सम एग्जैक्टली सेम सम, पावर लॉस एनर्जी लॉस ही ढूंढना है, पर किस केस में? व्हेन बोथ ऑफ देम आर अनइक्वल कैपेसिटेंस। ओके, सो गो थ्रू सम नंबर 2.27 एंड देन रिटर्न बैक। पॉज क्या चाहिए? सो नाउ let's go on to exercise 2.27. No doubt it's a sum of additional exercise, but one of the important sum connected to 2.11 as I said. Now in this sum what we are given is a capacitor of 4 microfarad, यानी कि 4 into 10 raised to minus 6 farad is connected to a battery of potential 200 volt. तो एनर्जी कितना स्टोर हुआ इनिशियली? तो हाफ C1 V square, and that comes out to be 8 into 10 raised to minus 2 joule, 8 into 10 raised to minus 2 joule. Then total charging कितना होगा इसका? तो Q will be C1 into V, and that is
8 into 10 raised to minus 4 coulomb. So this is what happened is now a battery capacitor C1 connected to a battery and it's getting fully charged. कितना charge हुआ total? This much. Now battery is removed and another uncharged capacitor is kept. In the previous sum, C1 and C2 both were same, but now here C2 is 2 microfarad, 2 into 10 raised to minus 6 farad. So here it is not the same, बस इतना ही फर्क है. So let's see what happens when C2 is connected here. चार्जिंग मिलाकर वही वर्डिंग फिर से डाल देते हैं. चार्जिंग मिलाकर till potential difference of both of them will be equal, and V1 equal to V2. चार्जिंग मिलाकर till V1 will be equal to V2. अब V का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो V नो C इक्वल टू Q बाई V, तो V विल बी इक्वल टू Q बाई C, तो Q1 बाई C1 इक्वल टू Q2 बाई विल बी Q2 बाई C2. Now so Q1 upon C1 is 4 microfarad, Q2 upon 2 microfarad, so this will be Q1 will be equal to twice Q2. यानी यहाँ पे previous state was Q1 equal to Q2. क्यों? क्योंकि both capacitors were same. Now it is Q1 is twice Q2. तो Q1 Q2 की वैल्यू कितनी होगी? Q is the total charge. Also Q is equal to Q1 plus Q2 and that's equal बराबर है. So this will be equal to 3Q2. ये Q1 को रख दिया, 2Q2 रख दिया यहाँ पे. So therefore what you get is Q2 is equal to Q1 by 3, Q by 3, यानी इसका 1/3 हो गया. Q1 is equal to 2Q2, that is 2Q by 3. अब ये आ गया न्यू चार्जेस ऑन कैपेसिटर 1 and 2 आफ्टर गेटिंग स्टेबिलिटी. तो चलो एनर्जी फाइंड करते दोनों में कितनी है. सो U1 will be equal to Q1 square by 2 C1 and U2 will be equal to Q2 square by 2 C2. This much joule, this much joule. तो total energy कितना हुआ? U finally will be equal to U1 plus U2 and that comes out to be 5.2 into 10 raised to minus 2. 5.2 into 10 raised to minus 2. तो therefore energy lost कहाँ हुई है? Initial is bigger than the final. यानी initially ज़्यादा थी, finally कम है, मतलब energy is lost. कितना? U delta U is equal to UI minus UF, and that is 8 into 10 raised to minus 2 minus 5.2 into 10 raised to minus 2. यह आ जाएगा 2.8 into 10 raised to minus 2 जूल. इतना एनर्जी लॉस हो गया. एंड कहाँ गया ये लॉस्ट? दिस एनर्जी इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी while चार्जिंग C2. ओके, फर्क कहाँ आया था? खास ध्यान रखो, आगे सम 2.11 में दोनों सेम थे, अब दोनों अनइक्वल है. तो हमारे पास एक सम हो गया when both the capacitors are same, one of them is charged and it charges the second one. एक को चार्ज किया बैटरी से, वो उसके हेल्प से दूसरे को चार्ज करेंगे, यानी चार्जिंग अनदर कैपेसिटर यूजिंग अ फुल्ली चार्ज कैपेसिटर. दोनों आइडेंटिकल हो तब क्या होगा? 2.11. दोनों डिफरेंट हो तो कैसे करने का? 2.27. इसलिए दोनों सम हमारे लिए काम के हैं. इट्स अ वेरी वेरी फेवरेट सम फॉर बोर्ड एग्जाम्स, सो बी केयरफुल, प्रिपेयर इट वेल. हाय फ्रेंड्स, we complete the sums of exercise and then we completed one more of additional exercise, that is 2.27. Now we will do certain illustrations. Few of them are conceptual ones, so I will need to work it out on the board so that you get it more properly clear, because sums based on those numericals are coming. इसमें सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं illustration 2.4. Pause the video, go for the question, read it and return back. Illustration 2.4 में दिया हुआ है, there is a square. There is a square of side length D. इसके हर एक वर्टेक्स पे, लेट्स से वर्टेक्स नंबर 1 यहाँ पे चार्ज है Q, वर्टेक्स नंबर 2 पे चार्ज Q, वर्टेक्स नंबर 3 पे चार्ज Q एंड वर्टेक्स नंबर 4 पे चार्ज Q.
यानी ईच ऑफ द वर्टेक्स हैज अ चार्ज q, साइड लेंथ दी है, तो हमें बोला है कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस सिस्टम, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस सिस्टम। नाउ हाउ मच विल बी द वर्क रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस सिस्टम, तो पहले एक को लाए, फिर दूसरे को लाए, तीसरे को लाए, चौथे को लाए, दैट इज वी कैन डू इट। बुक में पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, इट्स अ लिटिल बिट लेंथी वन, सो आई सजेस्ट अ सिंपल सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। नाउ यहाँ पे वी वांट टू फाइंड द टोटल पोटेंशियल, कितना इस सिस्टम, सॉरी वी वांट टू फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस सिस्टम। अब वर्क रिक्वायर्ड कितना होगा, वर्क रिक्वायर्ड अगर फाइंड करना हो तो व्हाट यू हैव टू डू इज सिस्टम का टोटल पोटेंशियल ढूंढ लो। पहले कुछ नहीं था, पोटेंशियल वाज जीरो, जैसे सिस्टम जब आया पोटेंशियल आ गया इसका, तो वो पोटेंशियल कहां से आया, इट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वर्क डन। तो इससे हम लोग इस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल ढूंढ रहे थे। लेट्स फाइंड आउट द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। नाउ पोटेंशियल क्या होता है, U इक्वल टू k q1 q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस r12, तो हो गया 1 and 2 वाले चार्ज का सिस्टम का पोटेंशियल। ऐसे दो पोटेंशियल इज ऑलवेज ऑफ अ पेयर ऑफ चार्ज, तो विल मेक सच फॉर्म सच पेयर्स। कितने पेयर्स पॉसिबल है इसके अंदर, तो अगर देखें तो वी हैव 1 2 3 and 4, तो पॉसिबल पेयर्स 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3, सॉरी 2 2 तो नहीं होगा, 2 3 2 4, पर 2 1 और 1 2 तो सेम हो गया, इसे रिमूव कर देते हैं, एंड फिर आएगा 3 4। यूनिक कॉम्बिनेशंस पॉसिबल, तो हियर u will be equal to u12 u13 u14 u12 u13 u14, then u23 u24 and finally u34, यूनिक कॉम्बिनेशंस। एंड टोटल मार दो तो सिस्टम का टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। पहले वाला u12 देखे तो क्या आएगा, यूजिंग द फॉर्मूला k इंटू q1 q2, दोनों का चार्ज सेम है, तो q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना d, ओके। एंड हमें शायद याद होगा तुम्हें कि फॉर्मूला में यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी आता है, नेगेटिव के q स्क्वायर अपॉन d। अच्छा, फिर 1 and 3 की बात करें तो 1 and 3 की बात करें तो नेगेटिव के क्यू स्क्वायर, फिर से दोनों चार्ज सेम, अपॉन डिस्टेंस कितना हुआ, ये d है ये d है, तो दिस विल बी d रूट 2, द डायगोनल विल बी d रूट 2, तो अपॉन d रूट 2, फिर प्लस u14, तो 1 4 में चार्ज क्यू क्यू एंड डिस्टेंस दी, तो ये तो यही हो गया सेम 1 2 वाले। फिर u23 में भी चार्ज सेम, डिस्टेंस दी, सेम हो गया। फिर u24 में डायगोनल हो गया, तो डायगोनल वाला कैसा गया, तो यहाँ पे आ जाएगा +2 टाइम्स। फिर 2 4 हो गया, फिर 3 4 अगेन द सेम डायगोनल साइड वाला, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ओके। सो 1 2 1 4 2 4 and 3 4 are similar ones, sorry 2 3 are similar ones which are sides with distance d, and u13 and u24 are the diagonal ones which will be here. So ये हो गया टोटल। कॉमन निकालो माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा क्या, -4 माइनस 2/√2, सॉरी माइनस तो बाहर निकल गया, 4 + 2/√2, सो दैट विल बी के क्यू स्क्वायर अपॉन डी 4 + √2, okay. So that is the total potentiality and that is the work required. As work required is equal to change total potentiality, so that will be minus k q square upon d into 4 + √2. So now this sum, what you find is that total work done is this much. Clear? अब ये टोटल वर्क डन कितना हुआ, सिस्टम के टोटल पोटेंशियल इतना। एक मेथड है, हर एक को एक के बाद एक लाओ और टोटल मारो, जो बुक ने मेथड दिया हुआ है, एंड दूसरा मेथड टोटल पोटेंशियल काउंट करके इक्वल टू वर्क डन कर दो, दैट्स ऑल। अब इस सम में एक वेरिएशन आ सकता है, जो हमारी बुक में दिया वो सम कुछ ऐसा है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है,
तो सब में क्या फर्क पड़ेगा, चलो चेक करते हैं। 2 और 4 इज नेगेटिव, तो पहला कॉम्बिनेशन 1 2 का, 1 2 में एक प्लस चार्ज एक माइनस नेगेटिव चार्ज, डिस्टेंस तो वही का वही है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट प्लस 1 2 में। अच्छा सिमिलरली हमने देखा था 1 4 इज सिमिलर, 1 4 कौन सा है 1 और 4, एक प्लस एक माइनस है, तो सेम थिंग आएगा उधर भी। फिर 2 3, 2 3 में 2 और 3, एक प्लस एक माइनस है, तो भी सेम हो जाएगा। देन इट इज 3 4, 3 4 में एक प्लस एक नेगेटिव है, हो गया। तो एज इट इज ये तो कोई फर्क नहीं पड़ा, खाली माइनस साइन गए यहाँ पे, ये दोनों नेगेटिव डायगोनली ऑपोजिट। अच्छा फिर ना डायगोनल्स में आता है 1 3, 1 और 3 बोथ आर पॉजिटिव, तो ये माइनस साइन रहेगा, दोनों पॉजिटिव है क्योंकि फॉर्मूला में ही नेगेटिव साइन है। ओके, और 2 और 4 दोनों नेगेटिव, तो मल्टीप्लिकेशन वापस पॉजिटिव हो जाएगा, तो नॉट अफेक्ट, तो ये एज इट इज, खाली ये पॉजिटिव हुआ, उतना ही फर्क हुआ। तो अब बाहर के क्यू स्क्वायर अपॉन डी कॉमन निकाले, तो 4 माइनस 2/√2, 4 माइनस √2, इतना फर्क हुआ अगर ये दोनों नेगेटिव थे। इज इट क्लियर? सो चार्जेस कौन से चार, उसके ऊपर ध्यान रखें, डू द कैलकुलेशन। ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन 2.4। नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें सेकेंड पार्ट अभी बाकी। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है कि सेकेंड पार्ट में बोला है कि इफ इन दिस सिस्टम एट द सेंटर लेट्स से E, अगर बाहर इंफिनिटी से किसी एक चार्ज Q0 को पकड़ के लाए यहाँ पर, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, द वर्क डन इज Q into V at that point E, let's say VE, potential at that point E, ये फॉर्मूला वर्क डन का। वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इज Q into potential at that point। अब हमें फाइंड करना पड़ेगा पोटेंशियल एट पॉइंट E, फिर पोटेंशियल एट पॉइंट E क्या आएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी था, अब पोटेंशियल चाहिए। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू KQ/R। नेगेटिव साइन होता है यहाँ पे, नहीं, उसमें नेगेटिव साइन नहीं है पोटेंशियल में, पोटेंशियल में है उसमें नहीं है। नाउ हियर व्हाट वी फाइंड इज दैट चार्ज कौन सा लाइक Q0, सॉरी पहले पोटेंशियल पॉइंट E गिनते हैं। E पॉइंट पे पोटेंशियल किसके कारण, 1 के कारण, 2 के कारण, 3 के कारण, 4 के कारण। चलो डिस्टेंस R हो जाएगा सेम हर एक चार्ज का फ्रॉम द सेंटर। तो पहले चार्ज के लिए V1 प्लस दूसरे के लिए V2, तीसरे के लिए V3 प्लस चौथे के लिए V4। V1 इज KQ/R, V2 is K into negative Q/R plus V3 is KQ/R plus V4 is K into negative Q/R। सिंप्लीफाई करो तो 0 आ गया, तो देखो वर्क डन कितना होगा। तो इन दिस केस वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट इन द सिस्टम, work done will be 0 at the center of the square will be 0। Clear?